سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کرم فرما بھائی صدام حسین صاحب نے یہ 100 روپے مدرسے کے لیے صدقہ پیش کیا ہے. اچھا یہ 120 روپے انہوں نے بھی صدقہ مدرسے کے لیے پیش کیا. اللہ کریم کرم فرمائے. اور انہوں نے نذرانہ بھی پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے عزیزوں، میں نے قرآن مقدس کی آیت شریفہ تلاوت کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، خبردار ہو جاؤ، تنبیہ اور آگاہی ہے تمہارے لیے. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہے اور نہ انہیں کوئی غم کھاتا ہے، نہ وہ حزن و ملال میں ہے. بے خوف ہے، بے نیاز ہے، اور یہ سب ان پر ان کے رب کا کرم ہے. سرکار محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر آپ بدایوں شریف کے رہنے والے تھے. آپ کے والد گرامی بخارا کی سرزمین سے آئے تھے. بخارا آج ایران کا حصہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا نبر اللہ مرقدہ بانوارہ الساطعہ، جنہیں ہم دہلی والے مائی صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں، ادھچینی گاؤں میں جن کی درگاہ شریف ہے. بڑی پاک باز ولیہ کاملہ، جو دعا کرتی وہی قبول ہو جاتی، جو دعا بھی فرماتی. سرکار محبوب الہی کا جب دہلی میں پہلی بار آنا ہوا، پہلی بار بدانی چھوڑ کے دہلی آئے. ساتھ میں آپ کی والدہ ماجدہ تھی اور آپ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن صاحبہ تھی، اور اونٹنی پر کجاوا بندھا ہوا تھا. یہ سوال پہ انہوں نے مدرسے کے لیے صدقہ پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. اونٹنی پر کجاوا بندھا ہوا تھا اور دلی والے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے. قحط سالی آ گئی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، اور دلی میں تمام تر ندی، نالے، تالاب، کنویں سب سوکھ گئے تھے. سرکار محبوب الہی کا داخلہ ہوا دہلی میں. دہلی والے نماز استسقا پڑھ رہے تھے. نماز استسقا اس نماز کو کہتے ہیں کہ جب سوکھا پڑ جائے تو آبادی کے سبھی مرد ننگے سر ہو کر دھوپ میں نماز پڑھیں گے. یہ نماز استسقا ہوتی ہے. تو لگ بھگ ایک ہفتے سے دہلی میں نماز پڑھی جا رہی تھی، مگر بادل کا کہیں نام و نشان نہیں. چلچلاتی دھوپ، دماغ گرمی سے تپ رہا تھا، جسم جل رہے تھے، حتیٰ کہ جانور کے تھنوں سے بھی دودھ سوکھ چکے تھے. اتنی زیادہ پریشانی تھی دہلی میں. سرکار محبوب الہی نبر اللہ مرقدہ فیجر اللہ تبارک و تعالی فضلہ علینا وعلیکم وعلی کل المؤمنین والمؤمنات رضی اللہ تعالی عنہ. دہلی میں داخل ہوئے، اونٹ کی نکیل پکڑے تھے. والدہ اور ہمشیرہ کجاوے میں بیٹھی تھی. جب آپ اس میدان کے قریب سے گزرے جہاں لوگ نماز استسقا پڑھ رہے تھے، آپ کی نظر پڑی. والدہ ماجدہ سے عرض کیا، والدہ لگتا ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں اور نماز استسقا پڑھ رہے ہیں. یہ کیونکہ ہم دہلی میں داخل ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہے، کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، حتیٰ کہ جمنا ندی بھی سوکھی پڑی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کی خیریت پوچھائیں. والدہ ماجدہ نے اجازت دی تھی. تو سرکار محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ کم سن تھے، عمر شریف 13-14 سال کے قریب رہی ہو، مجمع کے قریب گئے، کہنے لگے اے لوگو
लोगों ने अपना दुख बयान किया। आप फरमाने लगे अगर तुम इजाजत दो तो हम भी तुम्हारे लिए दुआ मांगे। कहा हम तो एक हफ्ते से परेशान हैं, आप भी दुआ मांग लीजिए, क्या मालूम अल्लाह आप ही की दुआ कबूल कर ले। सरकार महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने ऊँटनी के करीब गए। पर्दा डला हुआ था, पर्दे के अंदर हाथ डाला, अपनी वालिदा माजिदा के दुपट्टे को हाथ में लिया और अर्ज की है बारेला, ऐ खल्लाक़े कायनात, मौला मेरी जुबान में तो वो तासीर नहीं है कि मैं तुझसे कहूं और तू मेरी दुआ कबूल कर ले, लेकिन मौला मैंने अपने हाथों में जिसका दामन ले रखा है, जिस माँ का आंचल संभाला है, ऐ मौला आज तक के मेरी माँ के आंचल को आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा है। मौला उस माँ की आंचल का वास्ता परवरदिगार तू मेरी दुआ सुन ले, दहली वाले को सैराब कर दे। अभी ये दुआ ये अल्फाज कंप्लीट भी ना हुए थे, ना जाने कहां से काले काले बादल आए, घटा टोप अंधेरा छाया और झमाझम कई हफ्ते तक के दिल्ली में बारिश ही बारिश होती है। और तब से लेकर आज तक तारीख बताती है दिल्ली में कभी सूखा नहीं पड़ा, पानी की कमी कभी नहीं हुई। कभी मामलात गड़बड़ हुए तो फिर कहीं ना कहीं से इंतजाम हो गया, लेकिन उस तरह का सूखा दोबारा नहीं पड़ा। तो आज जो दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है वो सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया की दुआओं का सदका है, उनकी वालिदा माजिदा की आंचल का सदका है। औलिया अल्लाह के दामन से करीब रहे, अल्लाह पाक मुश्किलें आसान कर देता है। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद हाशिम साहब किबला इन्होंने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला बरकत फरमाए। मेरे अजीजों, सरकार महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना आप अल्लाह की जात में फना कर दिया। पूरी दुनिया में जितने वलियों में जो महबूबीन हुए हैं उनमें पहले महबूब हजरत सरकार बड़े पीर दस्तगीर पीरे पीरा मीरे मीरा कुतुब रब्बानी महबूब सुहानी पीरे लासानी शहबाज़े लामकानी मुहिद्दीन अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है जिन्हें लक़ब मिला महबूब सुबहानी का। और दूसरे जो महबूब हुए हैं वलियों में वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, उनको लक़ब मिला महबूब इलाही का। अल्लाह पाक हमारे हाजी साहब को फिर से खाने काबा का दीदार नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती हो, कि तलबों में झलन रहती है और अहलिया मोहतरमा भी सख्त बीमार है। सभी लोग दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुजुर्गों का साया हम पर बाकी रखे और इनकी दुआएं, इनका साया दराज हो, लंबी उम्र हो और सेहत अच्छी बन जाए। सब लोग कहें आमीन सुम्मा आमीन। तो सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह के वलियों में दूसरे महबूब हैं। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दिल्ली को संभाल रखा, संभाला हुआ था नहीं, संभाल रखा है। आज भी उन्हीं की निगरानी है। आपने देखे होंगे कई पेट्रोल पेशाब करने वाले हुकूमत में आए हैं और उन्होंने बहुत कुछ बका है दिल्ली के लिए, लेकिन होता वही है जो अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदों की ख्वाहिशें होती हैं। आजमाइशें तो हर दौर में आती हैं और परेशानियां तो होती है, क्योंकि इम्तिहान तो उसी का होता है ना जो बच्चा पढ़ता है। जिसके पास कुछ होगा उसे ही तो आजमाया जाएगा, वरना आपने देखा होगा कि नालायकों में कौन वो रखता है, जो सही लोग होते हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाती है, वरना नालायकों के तो मुंह लगता ही नहीं कोई, कहते ये तो है ही नालायक, उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। जो लायक होते हैं उसमें कमी आती है उसे संवारा जाता है, वरना नालायकों से मुंह लगने का मतलब है अपनी इज्जत को बर्बाद करना। क्योंकि आप ये एक कहेंगे वो 10 कहेगा, आपने एक लगाई तो वो 10 लगा देगा, तो अपनी इज्जत खुद बर्बाद करने के लायक के काबिल होती है। तो इम्तिहान उसका होता है जिसके पास कुछ होता है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पास अल्लाह ने जो दौलत दी है वो
वो ईमान की दौलत है। और मेरा रब फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अंफुसि वत तमरात। ऐ मोमिनो, हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, कभी भूखा रखकर, कभी प्यासा रखकर, कभी मुसीबतें देकर, कभी बीमारियां देकर, कभी औलाद छीनकर, कभी तुम्हें तकालीफ में डालकर, कभी खाना पीना छीन लेंगे, हाथ में आया हुआ फल छीन लेंगे, तमाम चीजें छीन लेंगे। अब तुमने जो सब्र किया तो फरमाया इदा असाबतहुम मुसीबा वबश्शिरिल लदीना आमनू, इदा असाबतहुम मुसीबा, तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्हें मुसीबत लगी तो वो कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। अगर वो रब इसमें राजी है कि मैं भूखा रहूं तो मैं भी इसी में राजी हूं। तो रब फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। सुन लो, फिर यही वो लोग हैं जो मुसीबतों में सब्र और शुक्र वाले हैं। तो कुरान कहता है यही लोग हकीकत में वो हैं जिन पर अल्लाह की जानिब से रहमतें नाज़िल होती हैं, और यही लोग असल में हिदायत वाले हैं। वरना हमारे दौर में तो आजकल दिखावे ज्यादा है, रियाकारियां ज्यादा है। हम लोग इतने सच्चे और पक्के वाले मुसलमान हैं कि जिसने किसी ने टोपी लगा ली, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली और थोड़ी बाल लंबे लंबे कर लिए, चुटिया उटिया बुधा ली, तो हम कहते हैं कि बड़े बहुत बड़े वाले सूफी जी। और फिर अगर ऊपर से वो सुट्टा मारने लगा बैठ के तो कहती है तो पहुंचे हुए हैं, खाली सुट्टा ही मारते हैं। एक साहबा का हजरत क्या बताएं, एक सूफी जी थे, पूरे दिन में 100 बंडल बीड़ी पी जाते थे। ये उसको सूफी क्यों कहते हो? उसको तो गजेड़ी बोलो, नशेड़ी बोलो तुम उसे। उस हराम खोर ने हराम को परवान चढ़ाया है, तुम उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। शरीयत के खिलाफ कभी तरीकत हो ही नहीं सकती। जो जितना बड़ा तसव्वुफ वाला होगा उतना ही ज्यादा वो अल्लाह के नजदीक और शरीयत का परहेजगार होगा, शरीयत का पाबंद होगा। शरीयत तोड़ने वाला कभी मुर्शिद नहीं हो सकता, वो शैतान हो सकता है मगर पीर कभी नहीं बन सकता। इसलिए पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के। हर किसी के कदमों में मत जाके बिछ जाओ। दीन सबसे पहले जरूरी है, शरीयत सबसे पहले जरूरी है। आखिर आज के दौर में बदअकीदे हम पर क्यों उंगली उठाते हैं? नाम रख लिया मुसलमान वाला, और मुसलमान के लिए क्या कानून जरूरी है वो पता ही नहीं। बहतरे लोग सरकार महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाते जाते बूढ़े हो गए, लेकिन ये तक नहीं सीख पाए कि सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कैसे बन गए। खाली बैठे बिठाए बिना पढ़े लिखे उन्होंने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की, अल्लाह के लिए रोजे रखे, अपने आप को ज़ाते खुदा में गुम किया, जो आया सब फिदाए खुदा कर दिया। तब जाके अल्लाह ताला ने उन्हें महबूब इलाही का दर्जा अता किया। हम और आप बिना पढ़े ही सब कुछ चाहते कि हो जाए। मस्जिद आते आते बूढ़े हो जाते हैं, सजदा करने का तरीका मालूम नहीं होता। जानते हैं आप कि आप सजदे में होंगे तो सजदे में नाक का जमीन पर लगना वाजिब है, पेशानी का लगना वाजिब है, क्योंकि सजदा कहते ही इसे हैं। वज़उल जबहा अलल अर्दी बिनिय्यतिल इबादत, पेशानी का जमीन पर इबादत की नीयत से रखना ये सजदा है। और उसके अलावा हालत सजदा में निगाहें नाक पर होनी चाहिए, और हथेली जो रखेंगे आप जमीन पर तो कुत्ते की तरह हाथों को जमीन में नहीं बिछाना है, जैसे कुत्ते हाथ वो अपने पैरों अगले पैर को बिछाने बैठ जाते हैं। यही जुमला जो मैं बोल रहा हूं यही बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, ला तबसुतू अयदीयकुम अलल अर्दी कमिथलिल किलाबी। इसका माना होता है तुम अपने हाथों को सजदे की हालत में जमीन पर ऐसे ना बिछाओ
जैसे कुत्ते बिछाते हैं। अपने हाथों को जरा जमीन से ऊंचे रखो, हथेली लगे मगर ये वाला हिस्सा जमीन से अलग रहे और बगल से भी अलग रहे। कई लोग सजदे में ऐसा कर लेते हैं, ये जब ऐसे करेंगे तो आपकी उंगलियां किबले से मुड़ जाएंगी, किबले से फिर गई उंगलियां, जबकि किबले की तरफ उंगलियों का होना वाजिब था, आपने वाजिब छोड़ दिया। तो सजदे सौ लाजिम थी, सजदे सौ करा नहीं आपने, नमाज हुई। सजदे की हालत में आप पैर आपका नोक जमीन से लग रहा है, उंगलियों के नोक जमीन से लग रहा है, जबकि कम से कम एक उंगली की पेट जमीन में लगना फर्ज है और 3 उंगलियों का लगना वाजिब है। ऐसा बिल्कुल ऐसे मुड़नी चाहिए। हम ऐसा खड़े क्यों बिल्कुल खड़ा किए रहते, जैसे दीवार में साहुल कर रहे हो, दीवार टेढ़ी सीधी तो नहीं, आप सजदे में है, आपकी उंगली का पैर की 3 उंगलियां किबले की तरफ मुड़ी हुई होना वाजिब है और एक का मुड़ना फर्ज है। और फिर जब जमीन पर बैठे तशहुद की हालत में तो आपका एक पैर खड़ा रहे जिसकी उंगलियां किबले की तरफ हो, सीधा पैर, और उल्टे पैर को बिछाकर अपनी दोनों सुरीन उसके ऊपर रख दे और फिर आप तशहुद पढ़ें। और हालत तशहुद में आपने जब तहियात पढ़ ली और जब पहुंचे अशहदु अल्लाह पे, तो अब उंगलियां यूं मुड़ जानी चाहिए, ये दोनों ऐसे हाले बनेंगे, ये दोनों ऐसे मुड़ जाएंगे और उसके बाद शहादत वाली ऐसी होगी। ला पे उठाना है, इल्ला पे गिरा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उंगलियां फिर सीधी कर लें आप। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो बदमाश किस्म की छिपकली होती है जंगलों में, वो पूरी नमाज में बैठे हुए ऐसे मुड़े रहेंगे, ऐसे 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 उंगली हिलाते रहते हैं, जैसे राशा की बीमारी तारी हो गई हो या इसकी उंगली में लकवा मार गया हो। तुमने अपने बाप के घर से ये मसला कर लिया है। रसूल पाक की हदीस में तो हमने पढ़ा है, कुरान पाक में तो लिखा नहीं है। तुम्हारे इन मुल्लों ने तुम्हें ना जाने क्या क्या पढ़ा दिया। सुनो, अल्लाह के वलियों के दर पर जो जाता है, अल्लाह ताला सबसे पहले उसके सजदे और उसकी दुआ को कबूल कर लेता। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान पाक का 15वां पारा सूरह कहफ पढ़िए, इरशाद बारी तआला है, वलनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा, हम जरूर जरूर उनकी कब्रों के करीब मस्जिद बनाएंगे। और ये तामीर हजरत बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी 1000 साल पहले का वाक़या है। उस जमाने के मुसलमानों का अकीदा था कि अल्लाह के वलियों के कब्र के करीब नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी कबूल होगी, दुआ भी कबूल होगी। और ये अकीदा कुरान में लिखा है, हमारे और आपके घर की खेती नहीं है कि मुफ्ती साहब ने कह दिया, ऐसा नहीं। कुरान पाक के अल्फाज हैं, वलनत्तखिदन्ना अलैहिम मस्जिदा। और अल्लामा बैज़ावी ने इस पर तफसीर लिखी, ला यतबर्रकु मिनहुमुल मुसल्लून, ताकि नमाजी लोग इनसे बरकतें हासिल करें। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना पुराना अकीदा। और आज हम चले जाए मजार पे तो ये चिल्लम चिल्ली वाले रम खुदैये तुम कटे ये कहते हैं कि बरेलवी सजदा करते मजारों में, ये शिरक है, ये बिदअत है। तुम्हारे बाप ने कर लिया है मसला। जब कुरान का अकीदा है अल्लाह के वलियों के करीब जाया करो, दुआ कबूल होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कुरान की सुनते हैं, किसी के बाप की नहीं सुनते, रसूल पाक की सुनते हैं और किसी मुल्ले की नहीं सुनते। इसलिए याद रखें, मेरे नबी ने जो हमें हुक्म दिया है, जो कुरान और हदीस में पढ़ाया गया है, वही हमारा अकीदा है। अब किसी के समझ नहीं आए तो उसके अक्ल की कमी है कि उसे समझ नहीं आई। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कलमों से पाक है, अगर ना जा सके किसी वजह से अपने घर पे कुरान खानी कराइए, ना हो सके तो एक आलिम बुलाकर चंद आयतें पढ़वा कर कुछ तबर्रुक मंगाए, दुआ कराए और उसका सवाब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को भेजे, इंशाअल्लाह आपको बरकत मिलेगी। फिर उनके वसीले से रब से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला और उसका अजर आपको अता करेगा। खुद फरमाता है,
जाहिदू फी सबीलिल्लाहि वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में कोशिश करो, जिहाद करो और उसकी जानिब वसीला तलाश करो। और ये अल्लाह के वली हमारे लिए वसीला। वो तुसद्दिक़ू सदक़तन जारिया, और हमेशा सदक़े जारिया करते रहा करो। ऐ मोमिनो, हम हर जुमा आपको तबलीग करते हैं कि आप सदका कीजिए ताकि आपसे बला दूर हो, मुसीबत दूर हो। और इसी के तहत ये 50 रुपए मस्जिद के लिए किसी भाई ने भेजे, अल्लाह कबूल फरमाए। तो हमने आपसे बताया कि सदका जारिया किया करें, अल्लाह इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। सदका जारिया का मतलब है, कुरान मुक़द्दस में इरशाद हुआ, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ भी तुम यहाँ अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में यहाँ कर जाओगे नेकियां, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के नजदीक जरूर पालोगे। ये अल्लाह का वादा है, ये कुरान में साफ लिखा है, जो यहाँ दोगे अल्लाह उसका अजर देगा। वो चीज आपको प्रोटेक्ट करेगी परेशानियों से, बलाओं से, मुसीबतों से, हत्ता के कब्र में भी, हश्र में भी ये चीजें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आपके माल, दौलत, इज्जत, आबरू सबकी हिफाजत करेगी। इसलिए सदका किया कर। माशाअल्लाह, ये 50 रुपए भाई ने पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो हज़रात, सदका जारिया मदरसा यहाँ मौजूद है, इसके लिए आप सदका पेश किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पर मंथ अच्छा खासा खर्चा अगर हम मुदर्रिसीन वगैरह सबका जोड़ें तो तकरीबन 75 से 80 हजार, 90 हजार, किसी महीने 95 हजार रुपए का खर्च, और वो सारे का सारा हम और आपकी मदद से पूरा होता है। इसलिए सभी हजरात से दरख्वास्त है, ये सदका तो आपने देना ही है, कहीं भी देंगे सवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ जरूरत ज्यादा है। हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हमारे पास कोई कारोबार हो, इदारे का वहां से इनकम आ रहा हो, या इदारे की प्रॉपर्टी हो वहां से किराया आ रहा हो, या हमारा कोई मुहस्सिल है जो आपके पास हर महीने जाता है और वो आपसे लेके आता है, ऐसा भी नहीं है। जुमे जुमे में आप लोग आते हैं, हत्ता कि वो लोग जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे दरखास्त है, हर महीने आप कम से कम 100, 50, 200, 500 जो आपसे हो पड़े मदद कर दिया करिए, ताकि हाफिज साहब की तनख्वाह में और बावर्ची साहब की तनख्वाह में, मास्टर जी की तनख्वाह में हमें आसानी हो। और इसमें 200 मस्जिद के 300 रुपए मस्जिद, अल्लाह को। तो ये सदका जारिया है, इसका एहतमाम करें, हर महीने अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमने मदरसे की मदद करनी है। आप हर चीज के लिए अपना बजट बना के रखते हैं, 100-200 रुपए का बजट यहाँ इदारे के लिए भी बना लीजिए। जब यहाँ 40,000, 50,000 रुपए महीने में खर्च कर रहे हैं, ये समझिएगा कि 50,000 200 खर्च हो गई, 200 रुपए का बजट यहाँ का भी बना लीजिए, हर महीने पेश कीजिए, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अगर 300 नमाजियों ने 200 रुपए हर महीने दे दिए तो एक अच्छी रकम हासिल होगी और अच्छा खासा इंशाल्लाह सहूलत पैदा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि अल्लाह कबूल फरमाए, ये मदरसे के लिए भाई ने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ने इनकी मुश्किलें आसान फरमाए, कारोबार में खूब खैर बरकत हो। और दूसरा मसला माशाल्लाह, ये सबका 100 रुपए जो मैंने आपको बताया था कि आगे के हिस्से में जो फ्रंट में टाइल लगी थी, उस टाइल में के लगाई में 1,15,682 रुपए का कर्ज था, उसको हमने 250 मेंबरों पर तकसीम किया 462 रुपए के हिसाब से कि ये आसानी से उतर जाएगा, किसी पे भारी भी नहीं पड़ेगा। हमने ऐलान किया, ऐलान करते करते अब वो नंबर 162 लोग, 161 लोग और भी उसमें जुड़ चुके हैं, 162 लोग, बल्कि 163 लोग जुड़ चुके हैं और तकरीबन 87 अफराद और उसमें चाहिए, 87 मेंबर उसमें और चाहिए। माशाल्लाह, एक इन्होंने सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। तो अब 86 का मसला रह गया, एक इन्होंने कह दिया 462 रुपए। तो और भी जो हजरात सदके के तौर पर अपनी तरफ से मेंबरी इसमें करना चाहे 462 रुपए के हिसाब से तो करेंगे, सदका है, मुश्किलें दूर होंगी। अल्लाह करीम माशाल्लाह, इन भाई ने भी एक हिस्सा कह दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, एक उनकी तरफ से सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग खुद ही याद रखेंगे,
या बाद में हमारे मौलाना साहब को आप लिखवा दीजिएगा या हमें खुद ही पहुंचा दें आप। ये 3 अफराद हो गए, तो 87 में 3 कम कर दें, 84 लोग। और भी कोई साहब हो तो अपनी तरफ से अपनी हिस्सेदारी करें, मेंबरशिप लें और इदारे की मदद हो जाएगी ताकि हम आगे काम करा सकें। ऊपर दूसरी मंजिल पे और तीसरी मंजिल पे अभी फर्श में मार्बल लगना बाकी है, दीवारों में टाइलें लगनी है, काम बहुत सारा है इदारे पर। तो ये मामला पहले हल्के हो तब जाके आगे कदम बढ़ाया जाए। जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती तो तामीराती काम कैसे होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला आपके लिए कबूल फरमाए। खड़े हो जाएं। माशाल्लाह इन भाई ने भी कह दिया 4 लोग हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। सबके लिए उन्होंने भी खड़े हो जाएं, सबके सीधी करें।